नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को। अभी रात के 11:15 बज चुके हैं। मैं ये वीडियो को ट्राई कर रही हूँ कि 7 मिनट्स में मैं बंगाली में बोलूँ, 7 मिनट्स में हिंदी में बोलूँ और फिर इसको एंड करूँ 15 मिनट्स में। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कितनी दूर कितने मिनट खींचेंगे ये मुझे नहीं मालूम। मुझे आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी है कि रिजल्ट होने के बाद जो हुआ कि फाइनल एक्चुअली परसेंटाइल में जब स्कोर आते हैं, अभी एनटीए 2 शिफ्ट में जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, उसके बाद जो परसेंटाइल में कोई मतलब रिजल्ट जो आते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं कि जो लोगों को नहीं मिले किसी भी वजह से, कितने गए थे कट ऑफ, मतलब किसने कितने स्कोर की, क्योंकि वहाँ पे टोटल मार्क्स तो दी नहीं है फाइनल कट ऑफ के जो शीट्स है वहाँ पे। तो जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनके तो मार्क्स उनको पता होते हैं, उनको पता चलते हैं, लेकिन जो लोग नहीं होते हैं उसके वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं स्कोर कर पाता है, तो फिर इन लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डाउट्स होना काफ़ी नॉर्मल है। और मुझे भी डाउट होती है, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और सजेस्टेड भी टॉपिक भी आ रही है लगातार, और स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस हैं। सिर्फ मेरी इस पर लिटरेचर नहीं, लेकिन अदर्स जो रिनाउंड जो इंस्टीट्यूशंस और चैनल्स वगैरह है वहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत सवाल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँ कि मेरे साथ साथ आप लोगों के, आपके साथ साथ मेरी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सके और हेल्प हो सके, तो हमें कुछ आइडिया मिल सके। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस लिटरेचर को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। और आज मैं जो यहाँ पे लिख के लाई हूँ, प्रीवियस में मैंने बोर्ड पे करी थी और यहाँ पे लिख के लाई हूँ। फिर फाइनली मैं जो बातें करूँगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पहले मैं बंगाली लैंग्वेज में बोल रही हूँ, फिर बाद में हिंदी में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से आप लोगों को समझने में हेल्प गलत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकते हैं। তো আমি আজকে এখানে এই যে ফাইনাল কাট অফ নিয়ে অনেকেরই কনফিউশনস আর পার্সেন্টাইলে যখন আসে দুটো শিফটে এক্সাম হয়, এটা কমন যে খুব প্রবলেম হয় আমাদের বুঝতে। যারা পেয়েছে তারা তো জানে যে আমি কত পার্সেন্টাইল পেয়েছি, কিন্তু যারা পায়নি কোনো কারণে তারা পরেরবারের অ্যাটেম্পটের জন্য পরেরবারের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে, তারা জানে না যে আমি কতটা স্কোর করতে পারবো বা করতে হবে আমাকে, কতটা হবে না, কীভাবে প্রিপেয়ার হবো না হবো। মানে তাদের একটা হেল্প হয়, একটা গাইডলাইন যে এই টার্গেটটাকে, এই মার্কসটাকে আমরা টার্গেট করে এগিয়ে যাবো, তাদের অসুবিধা হয়। তো আমি একটু চেষ্টা করছি হেল্প করার। আমার এখানে লিখে আনা জিনিসগুলো যতটা ইম্পর্টেন্ট, মুখে বলবো যে বিষয়গুলো লাস্টে খুবই ইম্পর্টেন্ট, মন দিয়ে শুনতে হবে। প্রথমে বাংলায় বলছি, পরে হিন্দিতে বলছি। তো শুরু করা যাক। আর এই ধরনের ভিডিও ভিতরে কী করতে হবে, এসবি লিটারেচারকে প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে হবে। প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। তো এখানে বলা আছে, লেখা আছে আজকে ডেট এবং কাট অফ অ্যানালাইসিস আফটার রেজাল্টস। আমি ভেবেছিলাম যে এই টপিকের উপর আমি আর ভিডিও আনবো না, কিন্তু সাজেস্টেড টপিক অ্যান্ড স্টুডেন্টসদের কনফিউশনস লাগাতার চলছে, তো সেজন্যই মনে হলো যে সব আমার তো নতুন সত্য আর অনেক নামি দামি যারা প্রতিষ্ঠিত চ্যানেল আছে তাদের ওখানেও প্রচুর প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের, তুই একটু যদি আমি নিজের সাথে আপনাদের বা তোমাদের সাথে আমার হেল্প করতে পারি, তার জন্য নিয়ে আসা। তো এখানে কাট অফ অ্যানালিসিস আফটার রেজাল্টস, ইউজিসি নেট কাট অফ আফটার ফাইনাল আনসার কি। ক্যাটাগরি ওয়াইজ দেওয়া আছে, 5টা ক্যাটাগরিকে টেনে এনেছি। এগুলো আমার বোর্ডে দেওয়া ছিল, সেগুলোকেই লিখে নিয়ে এসেছি এবং আবার নতুন একটা প্রেডিক্ট করেছি, কিন্তু তারপরে আমি যেটা ফাইনালি বলবো সেটা। তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট লেখা আমি যেগুলো বলেছিলাম লিখে নিয়ে এসেছি। আই অলরেডি টোল্ড দ্যাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু চেঞ্জ মাই ওপিনিয়ন অ্যাবাউট দ্য কাট অফ আফটার ফাইনাল আনসার কি রেজাল্টস। রেজাল্ট এবং ফাইনাল আনসার কি আসবে। আই শেয়ার টু অল অফ ইউ দ্যাট মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম 1.5 or 2% will increase or decrease. That's it, nothing else. And this time and this was happened to us this time, সেটাই আমাদের সাথে হয়েছে। 195 হচ্ছে 65%, 205 68.35। তো এখানে দেখা যাচ্ছে লাস্টে ফাইনালি আমি বলছি যে এসটি নিউ ওয়ান অলসো সেম, মাই প্রেডিকশন ইজ কারেক্ট। তো এখানে আফটার ফাইনাল আনসার কি রিলিজ দেয়ার আর সাম এক্স্যাক্ট প্রেডিকশন ডান বাই মি মিনিমাম। আমি নিজেকে এখানে প্রমাণ করতে আসিনি, কিন্তু আমি এখানে ক্ল্যারিফাই করতে এসেছি, কারণ আমারও মনে হয় কোথাও না কোথাও বলেছি ঠিক আছে, কিন্তু আমারও মনে হয় যে না আর একটু ইনক্রিজ হয়েছে, সেটাও তোমাদের সাথে বা আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেওয়া আমার উচিত। মিনিমাম 1 or 2% ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ, অ্যান্ড ইট ইজ ইনক্রিজ দিস টাইম, বেড়ে গেছে। ডোন্ট ওয়ারি, কিপ পেশেন্স, হ্যাভ ফেথ, এভরিথিং উইল বি ফাইন, বি পজিটিভ। ইটস নট ব্লাড গ্রুপ, ইটস থিঙ্ক positive. Just I make a fun. By the way, let's come to our start our main thing, our main point, that is finally we get যেটা আমরা পেলাম
আমি এই বিষয়গুলো সারাদিন ধরে তৈরি করে নিয়ে এলাম। এটা কিন্তু আমি নিয়ে আসার আগে ইউটিউব, গুগলের সাহায্য নিয়েছি। আমি একা নিয়ে আসতে পারবো না, এটা পসিবলই নয়। আমি অন্যেরটা না শুনলে নিজে এগুলো সম্পর্কে জানবো না। এটা কমন, এটা সাধারণ বিষয় এবং এটা খুব একটা নর্মাল। কিন্তু আমি কেন অন্যটা দেখবো না বা ফলো করবো না? আমাকে তো সঠিকটা জানতে গেলে অন্যেরটা শুনতে হবে, ঠিক ভুল কি আছে না শুনতে হবে। তো একজন ক্যান্ডিডেট 212 পেয়ে তার 99.94% হয়েছে, যেটা আমি পার্সেন্টেজে যখন ইনপুট করলাম তখন বেরোলো 70.66, মিনস 70.67%। তো এসসি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে 149.4% পেয়ে একজন মানে টোটাল পেয়ে তার পার্সেন্টাইল দাঁড়িয়েছে 84.2। এটাও ক্যান্ডিডেটের বলা, আমার নিজের নয়। কিন্তু এখানে যদি কোনো কিছু এই দুটোর মধ্যে যদি কোনো কিছু ভুল ভাল থেকে সেটার জন্য আমি মানে দায়ী নই বা দোষী নই। আমি কিন্তু কালেক্ট করে এনেছি তাদের বলা কথা থেকে বিশ্বাস করে। এখন সেখানে যদি কেউ ভুল বলে সেটা কিন্তু আমার মানে আমার ভুলের মধ্যে পড়ে না, তবু আমি কিন্তু এটা উল্লেখ করে দিলাম এখানে যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো। নেক্সট হচ্ছে এই ফাইনাল কাট অফ, এটা কিন্তু আমাদের রেজাল্টের। আমি এটা তুলে নিয়ে এলাম 5টা ক্যাটাগরির, এখানে লেখার পর জায়গা ছিল না তাই এখানে, আর এখানে সুবিধা হবে তাই আর আলাদা পেজে যায়নি। তো এখন মেইন কথা বলা যাক যে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেনারেল বা আনরিজার্ভড 99.80 জিআরএফের আর 97.375 নেটের। তারপর ওবিসি, ইডব্লিউএস, এসসি, এসটি। তো ইডব্লিউএস জেনারেল পর ইডব্লিউএস এর ক্যাটাগরি থাকে, তারপর ওবিসি, তারপর এসটি। দিস টাইম প্রথমে ওবিসি তারপর ইডব্লিউএস দেওয়া আছে। যাই হোক, তো বিষয় হচ্ছে যে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এখানে যখন 212 পেয়ে 90, আরেকটা কথা হলো 200 থেকে 250 যদি কেউ স্কোর করে 300-র মধ্যে, এটা 99% যায়, মানে 200 অ্যাবাভ। এটা যখন আমরা পার্সেন্টাইল স্কোর করবো, যদিও পার্সেন্টাইল হিসেব করার বিষয় হলো যে কতজন অ্যাপিয়ার করেছে, কে হাইয়েস্ট পেয়েছে, স্টুডেন্ট সংখ্যা আমাদের জানা খুব দরকার, হাইয়েস্ট কে মার্কস কত পেয়েছে সেটাও আমাদের দরকার, যেটা আমরা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় এইভাবে পার্সেন্টাইলে যদি রেজাল্ট নিয়ে আসে, কারণ আমরা ক্যান্ডিডেট, আমরা তো এনটিএ নই বা আমরা তো রেজাল্ট নিয়ে আসবো না। তো এখানে কিন্তু 200 অ্যাবাভ থাকলে 99% পড়ছে। 99 মানে সে 99% পেয়েছে, আর কাট অফ মানে সে যে হাইয়েস্ট পেয়েছে সেখান থেকে শুরু হচ্ছে কাট অফটা। ওকে, তো এই হচ্ছে বিষয় যে এটা হাইয়েস্ট গেছে। এগুলো হলো সেই কাট অফ। এই কাট অফের মধ্যে আমরা আইডিয়া করতে পারবো যে এর মধ্যে আমাকেও আসতে হবে, আদারওয়াইজ আমার কিন্তু হবে না বা আমাদের হবে না, সেইভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। এখন আমি বলতে পারি যে 198 থেকে 203 টোটাল নাম্বার, 300-র মধ্যে এটা ওবিসির জিআরএফ ছিল আমার মনে হচ্ছে, আর আমার মনে হয় আমি মোটামুটি ঠিকই বলতে পারছি। এর আগে আমি যেটা বলেছি 195 থেকে 205-এর মধ্যে, কিন্তু না, কিন্তু কারণ 68% এখানে কিন্তু 70.67% আমরা তাহলে জিআরএফ পেয়ে গেলাম, যেটা এখানে আমি বলেছিলাম 66.68, 66 থেকে 68 মানে 66 থেকে 68 মধ্যে থাকবে জিআরএফ, কিন্তু সেটা 2% বেড়ে কিন্তু 70%-এর মধ্যে চলে গেছে। তাহলে আমি বলেছিলাম যে 1, 1/2, 1.5, 2 বাড়বে, বেড়েছে বা কমবে, ক্ষেত্রে বেড়েছে, তো আমি আর জন্য নতুন করে কিছু বলিনি। যেহেতু কয়েকটা প্রশ্ন হয়তো ড্রপ হয়েছিল, তার জন্য গ্রেস মার্ক বা বোনাস মার্কস পেয়ে এই ঘটনাটা ঘটতে পারে, সম্ভাবনা প্রবল। 200 থেকে 205-এর মধ্যে আমি ধরে নিচ্ছি ইডব্লিউএস এর জিআরএফ ছিল টোটাল, আর 146 থেকে 148-এর মধ্যে এসটির নেট, যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি 149.4-এর মধ্যে এসসির ক্যাটাগরির নেট হয়েছে, শুধু নেট কিন্তু এটা, যেটা 49 পয়েন্ট সামথিং হয়, যেটা কি হচ্ছে যে 50%ই কিন্তু দাঁড়াচ্ছে, অ্যারাউন্ড অ্যাপ্রক্স 50%। তাহলে এখান থেকে আইডিয়া পাওয়া গেল তো যে এসসি ক্যাটাগরি নেট পেতে গেলে আমাদের এরপর থেকে 50% পেতেই হবে, আর জিআরএফের ক্ষেত্রে 50% মানে 150, 150-র মধ্যে, আর জিআরএফ পেতে গেলে 185 থেকে 195-এর মধ্যে আসতে হবে। সেটা আমি এখানেও লিখে দিই এইবারেরটা হিসেবে, এখানে যে 185 থেকে 195 জিআরএফ এসসি ক্যাটাগরির জন্য, ঠিক আছে? এটা এখানে আমি বলে দিলাম, এটা কিন্তু একদম ঠিকঠাক আমি মনে হয় প্রেডিক্ট করতে পারছি। এগুলো তোমরা দেখে নেবে, আগেরটা নতুন, তারপরেও আমি দেখলাম যে না, আরও কিছু ছাত্রদের এইটা শোনার পর আমার মনে হলো আমার আরও কিছু বলতে হবে, তার জন্য নিয়ে এলাম। আর আমি ভিডিওটা বড় করছি না, এখন আমি হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করছি, 9 मिनट হয়ে গেল। अभी आप लोगों को मुझे ये बोलनी है कि ये जो मैंने चार्ट पे लेकर आई, ये मैं बोर्ड पे शेयर करी थी। अभी मैं इसको मुंह में मतलब अपनी ऑरली भरभरी नहीं बोलने जा रही हूँ। और एक PhD एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, प्लीज़ सर्च इट ऑन द ऑफिशियल NTS ऑफिशियल वेबसाइट। आई एम सॉरी, क्योंकि ये 5 कैटेगरी के साथ साथ अदर्स जो 20 कैटेगरीज हैं वो लोग भी मेरे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितनी ये। कोई भी भेदभाव मेरे लिए नहीं है, सब इंसान, सब कैटेगरीज मेरे लिए समान
मान्यता, समान गुरुत्व और समान सम्मान रखते हैं। और यहाँ पे मैंने एसटी के नहीं लिखी क्योंकि इस बार हमने देखी कि एससी और एसटी के जो जीआरएफ के कट ऑफ थे सेम ही थे, जो कि 97.37 थे। ओके, जो 97.37 थे जीआरएफ के। नेट के कुछ चेंज हुए, नेट के 84.23 थे एससी के और एसटी के 81.92। ओके, तो मुझे ये बोलना है, मैं ये सब बोलने नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी जो मैंने पहले मुंह पे बोली थी। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट आई डोंट वांट टू चेंज माय ओपिनियन अबाउट द कट ऑफ आफ्टर फाइनल आंसर की एंड रिजल्ट्स। आई शेयर टू ऑल ऑफ यू दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 और हाफ और 1.5 और 2% will increase or decreased. That's it, nothing else, and this time this happened to us. Okay, तारपरे उसके बाद मुझे बोले 195 मतलब 65%, 205 मतलब 68.35% कैलकुलेट करके लाई मैंने। तो यहाँ पे मैंने लिखी कि शिफ्ट 1 जेआरएफ आई प्रेडिक्टेड 66 to 68, लेकिन वो 69 तक चला गया। शिफ्ट 2 के बारे में बोलेंगे तो हम 68 से 69% में चला गया शिफ्ट 2 के जेआरएफ के, और शिफ्ट 1 के 70 तक चला गया, मैंने जो बाद में बोल रही हूँ। और मैंने कहा था कि नेट तो ये बोला था कि 50 नेट 58 और 59 के बीच रहेंगे, नॉट मोर देन दिस। लेकिन मुझे यहाँ पे बोलनी है कि अभी मैं ये वीडियो सारे दिन में जो पढ़ाई की, स्टडी की, कि मैंने 2 स्टूडेंट्स के मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने यहाँ पे ये सब लाने के पहले मैंने कुछ स्टडी नहीं की। स्टडी नहीं करती तो कुछ भी बोलना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, छात्र जो इंटरव्यू दे रहे उन लोगों की बातें सुनी, वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट की, वरना मैं कहाँ से लाऊंगी। मैं भी तो एक आम इंसान हूँ ना, मैं तो एनटीए की भी कोई नहीं हूँ और मैं तो रिजल्ट लाने वाले में से भी कोई एकदम सामान्य से इंसान हूँ। तो मैंने यूट्यूब देखा, गूगल सर्च की, कैलकुलेशन की, बारी बारी में कैलकुलेशन की, फिर लेके आई। एससी कैटेगरी में एक कैंडिडेट के ने कहा 149.4, उनके 84.2 परसेंटाइल आए, उनको नेट मिले। तो हम कह सकते हैं कि 212 पर 99.94 परसेंटाइल, मतलब जो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 70.67 जीआरएफ मिली है शिफ्ट 1 में। तो ऐसे ही आप लोग कह सकते हो कि शिफ्ट 2 में 69 पॉइंट समथिंग और 69% पे उनको जीआरएफ मिली। जो मैंने कहा था कि 1-2% इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, तो मैंने अपनी ओपिनियन चेंज नहीं की। फिर एससी कैटेगरी में हमें ये परसेंटाइल मिली जिसको नेट मिली, ये ओनली नेट के है, तो हम लोग 50% अप्रॉक्स 50%। तो और एक बात, 200 से 250 के बीच में जो टोटल मार्क्स में मिलती है, ये 99 परसेंटाइल कहलाते हैं। मतलब 300 में से अगर 200 आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आप 99 परसेंटाइल में आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये जो दो न्यूज़ मैंने स्टूडेंट्स के बातें सुनकर लिख के लाई हूँ, अगर यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो, इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं रहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने कहा, मैंने सुनी, मैंने लिख के ले आई आप लोगों के हेल्प करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई कर देती हूँ कि अगर यहाँ से कुछ गलत निकले, मैं आई एम सॉरी इन एडवांस, लेकिन लग रही है कि ये सच है, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद पढ़ाई करके लाई हूँ। ये सारी चीज़ें गलत हो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन लोगों की बातें सुन के लाई हूँ तो मैं यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को सतर्क कर दूँ, ताकि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और मैंने ये 2 कैटेगरी लाई क्योंकि ये 2 मुझे सुनने को मिली, अदर्स नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने प्रेडिक्ट करके लाई। तो जनरल कैटेगरी रिजल्ट को हमें 99.80 में जीआरएफ मिली, और ये मतलब जो कट ऑफ निकली, इस कट ऑफ के बीच जो है उनको जीआरएफ मिली, और जो लोग इस कैटेगरी कट ऑफ में हैं वो उनको नेट मिली। और एक बात, हमेशा जनरल कैटेगरी के जो नेट होते हैं वो एससी कैटेगरी के जीआरएफ होता है। दिस टाइम दिस इज ऑल्सो सेम, 97.375 एंड 97.375 पे इनको नेट मिली, इनको जीआरएफ मिली एससी को। और एक बात, दिस टाइम एससी के जो जीआरएफ और एसटी को जो जीआरएफ परसेंटाइल है वो भी सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा मुंह में बोलने के लिए और वर्बली ऑरली बोलने के लिए। और यहाँ पे जो नेट इनको 81.92 पे मिली एसटी को, और एससी को 84.23 पे, जो यहाँ पे 149.4 अराउंड 50% हम कह सकते हैं। ओके,
तो मुझे अब ये लग रही है कि 198 से 203 के बीच में ओबीसी को जीआरएफ मिली होंगी, तो 300 में से 200 से 205 में से ईडब्ल्यूएस को जीआरएफ मिली होंगी 300 में से टोटल, और 146 से 148 के बीच में सिर्फ नेट मिले होंगे एसटी को टोटल 300 में से। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज, इससे ये गलत नहीं हो सकते इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर की। आप जब सर्च करेंगे और भी टीचर्स से सुनेंगे तो आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सच है। और एक बात, जो लोग क्वालिफाई क्रैक कर लेते हैं उनके पास रिजल्ट्स होते हैं, वो लोग उन लोगों को पता चलती है कितने मार्क्स थे, कितने परसेंटाइल थे, कितने में उन्हें हुआ। लेकिन जिन लोगों का नहीं होता है उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए और फ्यूचर के अटेम्प्ट के लिए हम जब तैयारी करें तो किस मार्क्स को टारगेट करके आगे बढ़े। उन लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने इतनी सारा दिन में लिख के, सोच के, बैठ के, सर्च करके, पढ़ के लेके आई। तो मेरी जो मोटिव था वो सिर्फ आप लोगों को हेल्प करने के लिए था और डाउट क्लैरिफाई करने के लिए था। तो आज तो आप लोग थंबनेल एंड टाइटल को देखकर ये क्लैरिफाई कर लीजिएगा। और मैंने कहा था नहीं बनाऊंगी, लेकिन सजेस्टेड आ रही थी बार बार ये टॉपिक यूट्यूब पे भी, और स्टूडेंट्स भी बहुत सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस पे प्रश्न कर रहे थे। तो मुझे लगा मैं एक थोड़ी बहुत कोशिश करूँ, कुछ 1-2 या फिर ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो चला जाए और उन लोगों का हेल्प हो, तो उनके अगले अटेम्प्ट के लिए और फ्यूचर के लिए, उनके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, रेफरेंस के लिए बहुत हेल्प हो सकते हैं। और मुझे खुद भी क्लैरिटी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह सकती मैं ये सब सिर्फ लोगों के लिए करती हूँ, मैं खुद के लिए भी करती हूँ, क्योंकि ये सब करते करते मैं खुद में भी चेंजेस, मैं खुद में भी बहुत सारे थिंकिंग प्रोसेस खुद में रियलाइज़ कर सकती हूँ चेंजेस को भी, है ना। तो यही बात थी ना। तो आप लोग ये देख लेना, मैंने ये अगर बोलती तो और ज़्यादा टाइम लगती। मुझे लगा कि मैं 7 मिनट्स मतलब 15 मिनट्स में या ख़त्म कर दूं, तो ये मैंने कही थी। अगर आपकी कोई डाउट्स और प्रश्न हो कर सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो अब भी आप कमेंट कर सकते हो। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हवा में नहीं बात कर सकती क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही सेंसिटिव केस, मतलब सेंसिटिव चीज़ें हैं, परसेंटाइल एंड इसको स्टूडेंट्स फॉलो करके ही अपने अपकमिंग फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होंगे। तो हम यहाँ पे गलत बात नहीं कह सकते। अगर कुछ अप डाउन होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, वो भी हमें नोटिफाई कर देना, आइडेंटिफाई कर देना और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ कैंडिडेट, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ गाइड, mentor, whatever you think. Okay, so that's it for today. Good night to all of you. Stay safe, healthy and happy always, and keep your study and keep patience. Again, do not worry, keep patience, have faith, everything will be fine. Okay, all the best to all of you, including me. Thank you very much. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को कौन सी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए वो भी बोलिए। আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। নমস্কার। আশা করছি একটু হলেও হেল্প করতে পারলাম বা পারবো, বা যাদের কাছে পৌঁছবে তাদের কিছুটা ডাউটস কম বা এই বিষয়ে ক্ল্যারিফাই বা ক্ল্যারিটি মিলতে সাহায্য করবে। নমস্তে, থ্যাংক ইউ।